हाँ जी दोस्तों, ਤਰਕ ਟੀਵੀ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦੋਸਤ ਆਜ਼ਾਦ। ਦੋਸਤੋ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਮੇਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ। ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਦਭੁਤ ਕਿਸਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਸਾਨੂੰ ਬੜੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡਿਟੇਲ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ ਰਜਿੰਦਰ ਜੋਧਪੁਰੀ ਜੀ। ਰਜਿੰਦਰ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੈਥਾਰਸਿਸ ਦਾ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਸੀਏ ਆਪਾਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਇਸ ਦੀ ਡਿਟੇਲ ਚ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੀ ਜੀ ਰਜਿੰਦਰ ਜੀ ਜੀ। ਜੀ ਬਹੁਤ 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 ਧੰਨਵਾਦ ਮਜੀਦ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਟੀਵੀ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦਰਸ਼ਕ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਤੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੇ ਕੈਥਾਰਸਿਸ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਵਿਧਾ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਟੈਕਨੀਕ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਸਪਰੈਸ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਦਬੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਕੈਥਾਰਸਿਸ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਪਰੈਸ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਜੋ ਬੱਚੇ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬੋਲਣ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇਹ ਚੁੱਪ ਰਹੋ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਇਮੋਸ਼ਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਖਾਣ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਚੰਗੇ ਜਿਹੇ ਪਹਿਨਣ ਨੂੰ ਮਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਖਿਡੌਣਿਆਂ ਦਾ ਮਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਡਿਜ਼ਾਇਰ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਇੱਛਾਵਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ, ਲੇਕਿਨ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਡਰ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਇਮੋਸ਼ਨ ਸੀਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਛਾ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਸਪਰੈਸ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਚੇਤਨ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਤਾਂ ਉਹ ਅਚੇਤਨ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਪਈ ਹੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਉਹ ਕਦੇ ਸ਼ਾਂਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਬਾਰ-ਬਾਰ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸੈਂਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਮਾਈਂਡ, ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਥੱਲੇ ਦੱਬ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਨਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਮਾਈਂਡ 'ਚ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਫਿਰ ਵੀ ਪ੍ਰਬਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗਾਂ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਉਹ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਹਿਸਟੀਰੀਆ ਹੈਗਾ, ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਹੈਗਾ, ਫੋਬੀਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗ ਹੈ, वो किथे ना किथे साड़ी ਜਿਹੜੀ इच्छावां ने या अपनी जो इच्छाएं हैं जिनको हमने दबा दिया है चेतन मन, उसी का प्रगटावा है, उसी का एक रूप है। तो जो हमने दबाई हुई है अपने मन में, जितना कुछ दबाया हुआ है, इमोशन जो सप्रेस किए हुए हैं, उनको बाहर निकालने का नाम ही कैथारसिस है। जी मजीद जी। जी, तो जैसे मैं समझ पा रहा हूँ आपकी बात, कैथारसिस मेरे ख्याल से अगर हम मेडिसिन की बात करें कि जी जी जो मेडिकल साइंस की, खास करके उसमें एक टर्म आती है कैथारसिस। जी जी कैथारसिस जी को अगर हम आसान शब्दों में समझने की बात करें, जैसे कि मैं आपकी आपकी बात को समझ पाया हूँ, मेरे जी ख्याल जी से जी जैसे कभी कब्ज हो जाती है तो जी उसको जी जी ठीक जी करने के लिए जैसे जुलाब लिया जाता है, आसान जी शब्दों जी में जी कह दें, ताकि जी वो जी सब जी कुछ जी निकल जाए। मेरे ख्याल से जी जी उस जी तरह का तरीका मुझे लगता है। बिल्कुल जी, बिल्कुल। जी, जी। जी जी। जैसे दो प्रकार की कब्ज आप मान लें, एक तो पेट की कब्ज होती है जो दवाइयों से या किसी टेबलेट से ठीक हो सकती है, लेकिन एक मेंटल कॉन्सिक्वेंस है, जो मानसिक कब्ज है, उसको निकालने का या उसको जो राइट वे से निकालने का तरीका ही कैथारसिस है। कि जो मानसिक हमारी कब्ज हो गई है, हमारी इमोशन है वो दब चुके हैं, किसी ना किसी रूप में वो संकुचित हो चुकी है, उनको रास्ता नहीं मिल रहा है बाहर आने का, और वो निकल नहीं पा रही है। इसीलिए हम स्ट्रेस में हैं, डिप्रेशन में हैं, एंग्जाइटी में हैं, उदास हैं, या तरह तरह की मनोदशा जो भाव है हमारे बदले हुए हैं, तो उनको सही तरीके से निकालने का नाम ही कैथारसिस है। बिल्कुल सही मजीद जी। जी, राजेंद्र जी, जैसे हम अपनी सोसाइटी में देखते हैं, कभी जी अक्सर फिल्मों में देखते हैं कि किसी औरत का पति स्वर्गवास हो गया है, तो जी 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 अक्सर हम देखते हैं कि उसमें कि वो कहते हैं कि इसको रुआओ, इसको कहो कि ये रोए, इसको जी उसका जी जी बच्चा जी याद दिलाओ, इसको उसके जी 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 हस्बैंड याद दिलाओ, ताकि ये रोए। कहीं ऐसा ना बिल्कुल। हो कि ये इसका रोना अंदर ही दब जाए और जी 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 ये डिप्रेशन का शिकार हो जाए। मेरे ख्याल से जो आप बिल्कुल बात कहने की कोशिश कर रहे हो, शायद ये वही है बिल, कि बिल्कुल जी जी, जी। तो अगर हम इसके कैथारसिस को डिप्रेशन के इलाज के रूप में देखें, जी जी तो जी इसकी विभिन्न मेरे ख्याल से किस्में हो सकती हैं, ये जी कैथारसिस जी जी करने के तरीके हो सकते हैं। वो विभिन्न किस्मों के बारे में थोड़ा-सा बताइए, तो फिर जी जी उसके अलग-अलग जो तरीके हैं, फिर उसकी भी हम बात करेंगे। जी जी, जी जी, जी राजेंद्र। मजीद जी, आपने बहुत अच्छी एक बात कही कि जब किसी पत्नी का पति स्वर्गवास हो जाता है तो उसे रुलाया जाता है।
अब हमने देखा है समाज के अंदर बहुत सारे सियाने लोग होते हैं जो सामने रोना पसंद नहीं करते, या कुछ औरतें जो गुमसुम हो जाती है, रोना चाहती है लेकिन रो नहीं पाती है, तो बाद में वो मानसिक रोगों की शिकार बन जाती हैं। अब देखिए कि औरतें रो लेती है क्योंकि औरतों के अंदर एक एक्स्ट्रा सेंस, एक्स्ट्रा जो शक्ति दी है कि वो रो के अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस कर लेती हैं। इसीलिए तो औरतें हार्ट अटैक की कम शिकार होती हैं। लेकिन मर्दों को हमेशा ये सिखाया गया है, बताया गया कि मर्द होकर के रोता है, मर्द के बच्चे को तो दर्द नहीं होता, मर्द का बच्चा तो रोता ही नहीं है। इसीलिए हमारे साथ कोई बुरी घटना घट जाती है, कोई परिवार का कोई प्रियजन हमसे बिछुड़ जाता है, तो हम रोना चाहते हैं लेकिन खुल के रो पाते ही नहीं है, तो वो रोना अंदर दब जाता है, फिर मानसिक रोगों के रूप में वो बाहर आता है। तो आपने अगला सवाल पूछा था कि इसकी किस्में हैं, इसके कई प्रकार जी हैं कैथारसिस के। तो सबसे पहला तो यही आता है कि वीपिंग एंड शाउटिंग, कि हमें रोना आना चाहिए, कि रोना इंसान की ताकत है, ये कोई कमजोरी नहीं है। ये हमारी सोसाइटी में या एक ऐसे जैसे धब्बा सा लगा देते हैं कुछ लोगों पे, ये तो रोंदूमल है, इसको ये तो रो पड़ता है। ऐसा नहीं है कि हम रोने को हथियार मान लें। रोना अच्छी बात है कि जब हमारे अंदर फीलिंग है तो उसे जाहिर कर दें रोने से। और अगर कोई इंसान खुल के किसी के आगे रो सकता है ना, तो वो हल्का हो जाता है। रोने के कारण वो हल्कापन फील करता है, इमोशन उसके रिलीज हो जाते हैं। कहते हैं ना, गम आंसुओं के रास्ते बाहर आ गया, तो ये फिल्मों में गाने भी हैं, बहुत सारी इसके ऊपर शायरों ने शायरियां भी लिखी हैं। तो आंसुओं के माध्यम से वो इंसान हल्का हो जाता है। दूसरा कि चिल्लाएं, कई बार किसी के प्रति गुस्सा होता है, हमें गाली आ रही होती है, किसी ने बुरा कर दिया, जरूरी नहीं है कि हमें ये जो रोना या जो शाउटिंग है ये किसी प्रियजन के बिछड़ने के बाद करना है। कई बार कोई इंसान से हमें बड़ी घृणा होती है, किसी इंसान ने हमारा नुकसान कर दिया या किसी ने ऐसा कुछ कर दिया जिससे हम आहत हो गए, हमारी फीलिंग आहत हो गई, तो अब उसको कह तो पा नहीं रहे हैं लेकिन अंदर अंदर दबा रहे हैं, तो ये दबी हुई फिर से परेशानी का कारण बनेगी। तो इसको निकालने का पहला तरीका यही है कि शाउटिंग, कि जोर जोर से चिल्लाएं, उसके प्रति जो गालियां आ रही हैं उन गालियों को बोलें जोर जोर से। ऐसा नहीं है कि आप सरेआम खड़े होकर चौराहे पर या कहीं भी बोल देंगे। आप एक ऐसा स्थान ढूंढें जहां पर कोई ना हो आसपास में, अकेले स्थान पर चले जाइए या कमरा बंद कर लीजिए। कमरा बंद करके, जो कमरा पूरी तरह से बाहर आवाज ना जाए, तो ऐसे कमरे में आप बोलें, जोर जोर से बोलें, जो अंदर गुस्सा है उसे बाहर निकाल दें। तो ऐसा अगर जी 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 जी, ये पहला प्रकार है। जी जी हाँ जी, चलिए चलिए आप कहते रहिए। जी जी, तो ये पहला प्रकार है। इसके बाद जो दूसरा प्रकार आता है वो है प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन, कि जो गुस्सा या फ्रस्ट्रेशन या चिंता अंदर हमारे अंदर जो दब चुकी है, इमोशन दब चुकी है, उसे हमें निकालना है। उसके लिए प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन है कि हमारी मसल है ना, वो भी ऐसे ना संकुचित सी हो जाती है, टाइट सी हो जाती है उस स्ट्रेस में, एंजाइटी में। तो उनको भी ना, जैसे एक बार तो पूरा टाइट करना है मसल को, ये पूरी पूरी एक एक्सरसाइज है, प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन टेक्निक। यूट्यूब पे या अलग से गूगल पे मिल जाएगी। तो जैसे पहले हमने जैसे पैरों के अंगूठों को पूरा टाइट कर लेना है, कुछ सेकंड के लिए टाइट करके रखना है, छोड़ देना है। फिर उंगलियों को टाइट करना है, छोड़ देना है। पिंडलियों को टाइट करना है, छोड़ देना है। फिर थाइज मसल को इस तरह से, हाथों को, उंगलियों को, पूरे शरीर को कुछ देर के लिए पूरा टाइट करके रखना होता है, फिर छोड़ देना है, जैसे ऐसे। तो इस तरह से करने से जो अंदर इमोशन दबा हुआ है, एग्रेशन है या फ्रस्ट्रेशन है, गुस्सा है, वो निकल जाता है। ये दूसरी विधि है, प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन टेक्निक। इसके बाद तीसरी आती है ब्रीथ फायर, कि हम जोर जोर से सांस अंदर लें और छोड़ें, ऐसे ऐसे जोर जोर से सांस लें और छोड़ें। कुछ जैसे गिन के हम 20 सांस पूरा जोर से अंदर लें, फिर छोड़ दें, फिर 3 सेकंड का गैप लें, फिर से स्टार्ट कर दें। इस तरह से हम गिनती बढ़ा भी सकते हैं। तो ऐसा करने से भी जो अंदर इमोशन है, जो अंदर जो दब रही है चीज, जो गुस्सा है या किसी भी प्रकार की इमोशन है, फ्रस्ट्रेशन है, चिंता है, तनाव है, वो भी इसके जरिए बाहर आ जाएगा। इसके बाद चौथी टेक्निक है पंचिंग बैग टेक्निक या बॉक्सिंग, कि मैंने देखा था बचपन में कि सास और बहू का एक अलग सा रिश्ता है। उसे, इसके बारे में ये विषय नहीं है, लेकिन ऐसा रिश्ता है कि सास कैसी होती है जो बहू को तंग करती है। तो पुराने जमाने में ऐसा था कि कपड़े जो हैं बहुएं हाथ से धोया करती थी, एक थापी आती थी, उस थापी से वो कपड़े धोती थी। तो अब जैसे ही सास का कपड़ा आता था, उसका जो सूट आता था पहनने लायक, तो उसको वो पीटती थी थापी से, तो वो उससे जोर जोर से पीटती थी। उसको लगता था ये सास है, आज इसकी नंबर है। तो वो उसकी कैथारसिस की एक टेक्निक थी। पुराने जमाने में जो लोग अलग अलग काम करते थे हाथ से, तो उससे उनका कैथारसिस हो जाता था। तो पंचिंग बॉक्स है कि आपको किसी इंसान से गुस्सा है, कोई भी इमोशन है, तो उसको डायरी के पेज पे लिख लीजिए, या उस इंसान की फोटो है जिससे आपको परेशानी, उस फोटो ले लीजिए और पंचिंग बैग है
एक जैसे बॉक्सिंग बैग होता है, उसको जैसे छत के ऊपर से नीचे आप लटका सकते हैं, उसको जोर जोर से लात घूसों से आपने पीटना है, जोर जोर से, पूरा जोर जोर से, जब तक आपको पसीना ना आ जाए, जब तक आप खुद ना गिर पड़े, तब तक पीटते रहें। जैसे आपके पास पंचिंग ये बैग नहीं है, बॉक्सिंग बैग नहीं है, जैसे मोहम्मद अली एक जैसे बॉक्सर था, तो जी उसके जी बचपन में कुछ बुरा हुआ था, क्योंकि बचपन में हमारे साथ बहुत सारी घटनाएं घटती है जिनका गुस्सा जी हमारे अंदर दबा होता है, तो उसको सही तरीके से निकालना आ जाए अगर, तो हमारा करियर बन जाता है वही गुस्सा। तो मोहम्मद अली ने भी ऐसा ही किया था, उसके साथ जो ट्रोमेटिक घटना हुई थी, तो वो पंचिंग बॉक्स से उसी में उतनी ताकत आ जाती, उसी उतनी ताकत से वो सब काम करता था, वो अपना जो पैसा था, तो उसके कारण वो नंबर 1 भी बना। मिल्खा सिंह के साथ ऐसा ही हुआ था कि उसके जो पारिवारिक जो थे मेंबर, उनको मार दिया गया था किसी कारण से, उसके अंदर वो दर्द इतना भरा हुआ था, तो उसने वो दौड़ने में उस एनर्जी का प्रयोग किया, क्योंकि दौड़ना उसके लिए कैथारसिस का काम भी करता था। इसलिए ये जी घटनाएं हैं, तो इन घटनाओं को जैसे हम वहां पर लिख दें या पेज के ऊपर उसको, या उसकी एक इमेजिनेशन काल्पनिक तस्वीर बना के उसके ऊपर लगा दें और जोर जोर से पीटें, जब तक वो फट ना जाए या पूरी तरह से हमारे अंदर से थकान ना आ जाए, तब तक करते रहें। और अगर ये पंचिंग बैग आपके पास नहीं है, तो घर में तकिया होगा, तो तकिए को जोर जोर से पीटते रहें कमरा बंद करके, जब तक तकिया फट ना आ जाए, तकिया पूरी तरह से रोया रोया उसका निकल ना जाए, तब तक पीटते रहें। तब आपके इमोशन रिलीज हो जाएंगे या शांत हो जाएंगे। अगली जो टेक्निक है, 5वीं टेक्निक है, एक्ट आउट ऑफ इमिटेटिव ऑब्जेक्ट, कि आपको जिस भी वस्तु से या जिस भी चीज से गुस्सा है, उसका एक ना काल्पनिक आप एक मन में एक तस्वीर तैयार कर लीजिए, जी वो ऑब्जेक्ट बना लिए और उसके साथ जोर जोर से बात करें। उसी सिचुएशन में बहुत कुछ आप ना कहना चाहते थे उस पर्सन से या उस सिचुएशन में, लेकिन आप कह नहीं पाए, वो अंदर दब गया, तो आप एक काल्पनिक उसकी तस्वीर बनाइए और अपने आप को ऐसा महसूस करें कि आप वो सारी शब्द कह रहे हैं, वो जो कुछ कहना चाहते थे वो कह रहे हैं और कह दिया है, तो इससे वो रिलीज हो जाएंगे, शांत हो जाएंगे इमोशन। इसके बाद है पर्ज यूर वर्ड, कि हम जो भी कुछ हमें फील हो रहा है, बुरा फील हो रहा है, इमोशन फील हो रहे हैं, उसे शब्दों में लिख दें। एक कॉपी के अंदर, एक डायरी के अंदर उनको बारी बारी से जैसा मन में आए, ऊल फलूल, गाली आए, गुस्सा आए, कितने भी भद्दे शब्द आए, उनको लिख दें, पूरा लिख दें और उसको फाड़ दें, उसको फाड़ दें पेज को, उसको जैसे 17 टुकड़े कर ले, 23 टुकड़े, 25, जितने आप टुकड़े छोटे छोटे कर पाते हैं, कर करके उसको जला दें। तो जैसे ही आप फाड़ेंगे, जलाएंगे, तो वो इमोशन भी रिलीज हो जाएंगे। तो ये एक तरीका है। जैसे बहुत सारे लोग डायरी लिखते हैं, डायरी लिखना अच्छी बात है, लेकिन ये थोड़ी सी उससे आगे चली जाती है। तो डायरी लिखने से भी इमोशन है हमारे, जो दबे हुई चीज है वो रिलीज हो जाती है। जो शायर हुए, जो लेखक हुए, उनके अंदर जो इमोशन दबा हुआ था, उन्होंने उसी के रूप में बाहर निकाल दिया, तो आज वो कामयाब हो गए। तो ये एक तरीका है। उसके बाद जो 7वां है वो ड्रामा, कि जैसे आप ड्रामा करें, जैसे जो सीरियल में या जो ड्रामा थिएटर करते हैं, तो वो एक काल्पनिक उसी सिचुएशन में चले जाते हैं और अपने आप को वहां पर जी रहे होते हैं। तो आपने ड्रामा कैसा करना है, एक शीशे के आगे खड़े हो जाना है, जैसे घर के अंदर एक बड़ा सा शीशा लगा लेना, उस सिचुएशन में जिस इंसान से आप कुछ कहना चाहते थे, वो सारा कुछ शीशे में आप कल्पना करिए। दूसरे एक इंसान को वहां पर ले आइए, जैसे घर में कोई आपका जैसे दोस्त है या कोई बच्चे मिल जाएं, तो उनको वो कपड़े पहना करके वैसा वो ड्रामा सीन कीजिए और शीशे के सामने ये सारी एक्टिविटी करें। तो आप शीशे के सामने अपने आप को देखेंगे, तो सारे इमोशन आपके रिलीज हो जाएंगी। तो ये 7 प्रकार हैं इमोशन को रिलीज करने के और इस कैथारसिस टेक्निक के। जी मजीद जी। जी तो राजेंद्र जी, मेरे ख्याल से जैसे कि हम समझ पाए हैं, आप अपनी बात कह पाए हैं, मेरे ख्याल से ये जो सीधा सा तरीका है कि किसी भी बात को दबा के मत रखें। जी 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 अगर आप दबाते रहोगे तो एक दिन डिप्रेशन का शिकार हो गए हो। जी 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 अगर जी 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 आज भी आपको ये बात समझ आ गई है कि आप डिप्रेशन का शिकार हो गए हो, इलाज अपना करवा रहे हो, तो उसके साथ ये जो तरीका है कि अपना जी लो, जी कि जो भी कुछ दबा पड़ा हुआ है, जिसको गालियां निकालनी है गालियां निकाल दो, गालियां जी 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 सामने नहीं निकाल दे तो शीशे के सामने निकाल दो। जी 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 जिसको जी जी पीटना है, अगर उसको सड़क जी पर जी नहीं पीट सकते तो घर में एक पंचिंग बैग रखकर उसको जी जी पीट जी दो। जी यानी जी कि कुछ भी अपने मन में मत दबा के रखो, जो भी जी जी कुछ जी है। हाँ, समाज को जी जी बुरा लगेगा, आपको कुछ समय के लिए बुरा लगेगा, लेकिन जी जी आप जी ठीक हो जाओगे। ये एक बिल्कुल। तरीका है कैथारसिस का, एक अद्भुत सा तरीका है। जी जो भी जी लोग डिप्रेशन का शिकार हैं, मेजर डिप्रेशन का शिकार हैं, तो इस तरीके को अपनाएं। जी जी लॉटर थेरेपी है, पंचिंग बैग का तरीका है, बहुत सारे तरीके हैं, इनको अपनाएं और जी इन तरीकों से आप डिप्रेशन से बाहर आ सकते हो। जी राजेंद्र जी जी, जी आपका तर्कशील टीवी के लिए समय देने के लिए
बहुत बहुत धन्यवाद। आगे के लिए भी हम अलग अलग विषयों पर बात करते जी रहेंगे। जी आप जी सबका जी बहुत बहुत जी। शुक्रिया। For more contents related to rational thinking, subscribe our Tarkshil TV channel now. For instant updates of new videos, don't forget to press the bell icon.